अगर आपने कभी सुना हो कि सिंगल ओनर ऑपरेटर बहुत दफा आउट ऑफ बिजनेस हो जाता है, Yeah. तो वो और गैस स्टेशन में बहुत लोग आउट ऑफ बिजनेस हो जाते हैं। Yes. तो वो होते इसलिए हैं कि जब आप जैसे हम 4 बंदे अगर साथ में काम कर रहे हैं, मैं ओनर हूँ, आप 4 बंदे मेरे साथ एम्प्लॉयज काम कर रहे हो, तो ऑल्दो अगर इनमें से कोई एक बंदा शेडी है और मैं रोज मिल रहा हूँ, साथ में खाना खा रहे हैं, साथ में रजिस्टर चला रहे हैं सब, तो आप कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इनमें से कोई एक बंदा जो है वो थेफ्ट कर रहा है, तो that's इवेंचुअली बंदा आउट ऑफ बिजनेस होगा। अभी रिसेंटली मुझे पता लगा कि मेरी सारी गाड़ियाँ सैल्वेज थी, वाटर डैमेज है, बट किसी ने इतना टाइम लिया है कि यार आई डोंट नीड टू प्रूव यू, अगर सैल्वेज में है ना मेरे पास है। इमेजिन सुबह उठे वो कॉफी पी अपनी के, आज अयाज भाई की गाड़ियां ना मैंने प्रूव करनी है सैल्वेज है सारी। कितना टाइम होता है इन लोगों के पास गाड़ियों का शौक है? या आपके बेटे को है? मेरे बेटे को है। नहीं तो सैल्वेज फ्री होती है। तो पहले वही तो कह रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ भाई, उसमें भी पैसे लगते हैं जैसे भाई। अगर विंटर्स हैं और जैसे आपने लूज जैकेट पहनी हुई है, तो वो जो सिगरेट का कार्टन होता है वो सीधा जैकेट की स्लीव के अंदर चला जाता है, ठक करके, हाँ पूरा अंदर, तो ऑलमोस्ट एवरेज पे $100 का आता है, $100 का आता है, तो ठक एवरेज कैशियर जो है वो $100 बनाता है, और अगर रोज का वो एक कार्टन चोरी कर ले तो वो वो पूरे हो गए उसके। तो वो बाहर जाते हुए जो ट्रैश होता है, ट्रैश में चीजें डाल दी, घर जाते हुए बाहर से ट्रैश बैग उठा लिया, उसमें जो भी डाल लिया। Hi boys and girls, or rather I would say ladies and gentlemen, welcome to another podcast, and I'm almost doing this after a year, but this is a very special episode because we, again this time have Ayaz bhai, जिनके साथ मैंने पीछे podcast किया था, but we have another special guest as well, who is also a very massive big entrepreneur, and उनका भी हम introduction कराएंगे, but before we go into all of this, I want to quickly thank my co-host Uzair, who is going to be doing the podcasting with me this episode today, and he was the one who helped me set up all of that. So, Uzair. Assalamu alaikum, कैसे हैं मुसाफ? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र. Thank you, good to see you back on screen and back on the mic. Yeah, it's been a minute, man. But it was, Uzair was like, तुम्हें आना चाहिए, let's come to Houston, record a episode. And then I really wanted to do this as well because it's been a while. And, I want to meet all these great people and have a great conversation. Thank you. Good to see you here as well, and let's introduce our guests. Yes. So first we have अयाज भाई को मैं पहले करूँगा इसलिए क्योंकि अयाज भाई को मैं पहले इनके साथ एक podcast किया था, which was a very successful one. It was a really nice podcast, and in fact that was the first time we met like 5 minutes before the podcast. But the conversation flew so good because I don't know हम लाहौरी थे दोनों या क्या सीन था, but it was very genuine, it was very authentic, and I loved every minute of it. And अयाज भाई So, assalamu alaikum to your viewers and everyone. And additionally, I was telling you, it was my first ever podcast in my whole life. Yeah. So, I literally was there, called, and I think we had a iftari next day. And, Yeah. we barely met, and there was no script, no nothing. We generally just talked. So, I think it's more better, just like we're doing today. Yeah, there was See no you script, again. no nothing. I just like to keep it I authentic. keep it like that. Because it's genuinely, I don't have to think about stuff. So Yeah. it's like, maza aata hai ki theek hai yaar, jo baat ho rahi hai, uska instant answer to. It is the real answer, actually. 100%, 100%. And then we have Usman bhai over here. First time meeting Usman bhai, and it's really great meeting him. He's a very chill and cool guy. Like, आराम से अपने मतलब बैठे मजे में, और फिर लेकिन he is a very like he's a big entrepreneur. You have a lot of gas stations, right? And then before this, you were also a judge on Shark Tank, and then you've also been a judge on MasterChef. You said, right? So, I mean, and then there's a lot of other endeavors that you're going to be getting into, but, if you would like to formally a little bit introduce So, yourself. Assalamu alaikum, Musa. It's very good to be on the show, and thank you for having me. It's my first time with you, of course. Yeah. But बहुत शुक्रिया जिस तरह आपने इतना इंट्रोडक्शन करा. मैंने इतना अच्छा नहीं किया अभी, मैं और हैवी करना चाह रहा था और WWE की तरह लिखा हुआ है. But anyways, yeah. And special thanks to Zair for always inviting. तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलके. Ayaz से तो of course from the same industry. तो माशाल्लाह, good to be here. Ayaz bhai is more like a competition for you, या आपका same circle है? So I think gas stations in America is one industry where I feel like, especially where the point that we are at, nobody is like a threat to each other because the market is so big. It's like you go in the sea and you take a bucket out of water. So I mean, he takes out 5, I take out 2, I take out 3. It doesn't matter. And I think I'll add something. It actually works better कि हम लोग coordination में अगर काम करें, because at the end of the day, because अगर हम buy करें ना तो seller always try to play games. मैं उस्मान भाई को ये इतने के बेचा तो the minute actually it happened, I'm gonna tell you bunch of stories. I was like, उस्मान भी तो मेरे best friend है यार, and then it stops right there, right? So you actually want to be on the same page. So उस्मान भाई said
very good thing. Like it's such a big market where कि अगर आप थोड़ा थोड़ा भी निकाल रहे हो तो कोई एंड व्हाट competition इफ कोई ऐसा आप नहीं है। दोनों के बीच में या वैसे इन जनरल सेम इंडस्ट्री के हैं तो रिफ्ट पैदा करने की कोई कोशिश करे, इस तरह के इंसिडेंट्स हुए आपके साथ? It happens. I got recent couple of calls. Oh, really? Oh yeah, I did tell him कि यार जरा उस्मान भी को कॉल कर देना because देखो वो always मूसा रहेगा। क्लूलेस बैठा हुआ है, शायद हाँ, भाई ये हाँ। क्या चीज है? मैं क्योंकि learn कर रहा हूँ, मैं Dallas learn से कर रहा हूँ, कोई so नहीं। basically तुम लर्न करो आज। उसमें क्या होता ह्यूस्टन है ड्रामा आज कि मैं लर्न करूंगा भाई। यहाँ पे बस क्या बताऊँ, देसियों का जो होता है ना अपना ड्रामा नहीं, वगैरह। सभी पता क्या करते हैं यार, वो मैं नाम तो लूंगा ना बिकम वेरी ऑब्वियस कि यार वो उनका भी सेम बिजनेस है, तो मैं तो उनकी मार्केटिंग ले ही नहीं रहा। मैं कहा भाई बहुत बड़े बेवकूफ़ नहीं ले रहा, अगर मैं तो आई वुड सेल इट कि यार मेरे पास उस्मान भाई का भी मार्केटिंग का ये है, Musa, you want to do it? Uzair, you want to do it? So people are always going to try, man. At the end of the day, what I learned over the years, मैं किसी की बुराई नहीं करता, because you never know it when you're going to be sitting with that person. कोई बोल रहा है उसको सुन लो, डोंट एक्नॉलेज, जस्ट लिसन, एक कान से सुनो, उसी से निकाल दो, दूसरे तक जाने की जरूरत भी नहीं है। आई And- थिंक इसमें चीज़ ऐड ये करूँगा कि अच्छी चीज़ ये होती है, ओरिजिनल बात पे आते हैं कि जब आप बोलते हो कि कंपटीशन है या थ्रेट है, तो वो कंपटीशन और थ्रेट नहीं होता, बट ऐसा होता है कि अगर कम्युनिटी के लोग अपने जो होते हैं वो सेम इंडस्ट्री के अंदर होते हैं, तो इट्स ऑलवेज गुड फॉर कंसल्टेशन। 100%। आप अगर किसी चीज़ में एंटर इन कर रहे हो और इनको भी करना है या ये ऑलरेडी कर रहे हैं या वो कर रहा है, तो इट्स वेरी इजी कि आप उसको रीच आउट करके सलाह मशवरा कर सकते हो। तो आई थिंक जिस तरीके से ह्यूस्टन के अंदर जो गैस स्टेशन कम्युनिटी सेट हुई है, आई थिंक पीपल गॉट ईच अदर्स बैक। जो इंडस्ट्री में पुराने लोग बैठे हैं, Yes. दे हैव गाइडेड अस सो मच, Yeah. एंड ऑफ कोर्स हम लोग भी यहाँ तक पहुँचे हैं। And I think like there's a relatability thing as well, because you have so many, like you're in the gas station business, you have so many, and then you have so many, Yeah. right? And then there's not a lot of people like you. So if there's a problem at that level, who are you going to talk to, right? And अगर आपका एक अच्छा connection बना हुआ है, and that make like I believe के personally मुझे लगता है जितने भी, I mean since you're a big car guy and you know that like के जितने भी ऊपर automotive industries में हैं, I've heard के most of them are managed by 2 to 3 companies. Yes, And then like I mean BMW, I don't know if I'm like, correct me if I'm wrong, maybe it's managed by GM, right? Or owned by GM It's rather. GM, and then your Rolls Royce, Range Rover is owned by Tata. There you go. So like people don't know that. these things. And but then आपस में उनका क्या होता है, competition. बैक एंड पे चेंज होता रहता है, राइट? एंड Yeah. बट उस्मान भी जो बोल रहे हैं ना कि सो मेनी टाइम्स क्या होता है कि पीपल हम भी गाइडेंस लेते हैं यार, लाइक किंग फ्यूल्स, आई नो देम, आई हैव वर्कड विद देम टिल डेट। लाइक इफ देयर इज समथिंग आई विल कॉल ज़की अंकल, लाइक हे ज़की अंकल यार ये कॉन्ट्रैक्ट आया है, लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन। He's been in the business since like मैं अमेरिका में भी नहीं आया था, 80s. That's right? crazy, yeah. और ये लोग आपको गाइड भी करते हो, तो आई थिंक इट्स गुड टू डिस्कस। हाँ, प्रॉब्लम पता मुसा भाई कहाँ पे होती है, व्हेन यू बिकम वेरी एरोगेंट कि ओ यार हम तो दी शॉट ये बन गए, ये हो गए, मैन स्टे डाउन, कब आता है कब ज़्यादा पता नहीं लगता है, मैन, लाइक सो आई थिंक इट्स 100%. वेरी इंपॉर्टेंट कि वी टॉक एंड आई एम श्योर उस्मान भाई, बिकॉज वी हैव अ लॉट ऑफ म्यूचुअल पीपल वी नो, we all meet, believe it or not, they're bigger companies फ्लेक्सिबिलिटी sitting होना आई out गेस there. बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, Yeah. इस तरह की किसी भी आपको ग्रोथ के लिए फ्लेक्सिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और हम्बल तो रहना ही है ना, इसमें क्या डिस्कशन है। Yeah, but sometimes and ये मैं वैसे बात आगे करना चाह रहा था, but sometimes people look at it and they're like ये पैसे बना लिए इन्होंने, they have attitude वगैरह इस तरह का है, और ये उन गरीबों को, बेरोजगारों को चांस देते हैं, which makes me to believe you guys give them the chance, but there's just some people you cannot teach them, like you have to teach them how to catch a fish at the end of the day, because I think people like those, they come in and slow down, and it doesn't affect just you, it affects everybody who's working under you as well, so you have to be very careful. And then I wanted to I'll tell you, like till date, even in my office, and अभी हम शुरू होने से पहले क्या बात करें, तो उस्मान भी काम से डायरेक्ट आ रहे हैं, he was out of town, went to see a site, we till date work. लोगों की जो वो माइंडसेट बना हुआ ना कि यार अच्छा इतने बिजनेस होंगे तो कुछ करते ही होंगे, और वर्क इज वे मोर देन, Yeah, आई I स्वेयर know. टू गॉड, इफ यू हैव 10 businesses means you're watching, looking after 10 businesses, अब उसमें और at the same time you trying to acquire more, तो हमारा काम तो यार कभी खत्म नहीं होता है, तो staying humble is very important, yeah, but काम हम बहुत करते हैं, trust me यार, like the problems never go away. You have No. quality problems, but Uh-huh. problems are the part of life. Like बड़ी होती जाती हैं, problems होती जाती हैं. I think, but with the entrepreneurial journey, you guys get better dealing with it. Or maybe some people say like, it's so stressful when you're starting out with like at least the first 5 years that you get numb to it in a way. Eventually, you're like, इतने लाख का नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया. You're like,
Yeah, it's another Tuesday or something. I can relate to that. Yeah. शुरू में जब हुआ ना तो 5,000 का कुछ हुआ था, मेरी तो जान निकल गई कि $5,000 लूज हो गया. बट देन इट हैपेंस, लाइक कभी एक स्टोर के तो पूरा कोई एटीएम निकालने के चक्कर में पूरा स्टोर तोड़ के चला गया. And then you hear it and then we don't react to it now. अच्छा क्या होता है, अच्छा इंश्योरेंस को कॉल कर देना, पुलिस रिपोर्ट है. It's part of the business यार. I mean, I think every business comes with that. Yeah, and I was gonna ask both of you guys on this too, because like managing gas stations, man, it's like, you know, a lot of these gas stations have a lot of these security protocols, and then you're dealing with, you know, किस तरह के लोग आते हैं वहाँ पे. So you have to manage that, and like, you know, चोरियाँ हो जाती हैं, कितने मसले होते हैं. आपके कभी वर्कर होते हैं, वही पैसे निकाले, कुछ हो गया. So like, how do you guys like stay sane and manage all of this, man? Like, I mean, you have a team, of course, but then yeah. Answer this. So I've realized over the time that everything is based out of good infrastructure. Yeah. तो हमने over the time क्या करा है कि हमने अपने infrastructure पे बहुत काम किया है. And that's one of the major departments or vision that I have, which I focus on, is keep building infrastructure. अगर आपका infrastructure सही होता है तो आप सारी चीज़ों को, सारे obstacles को cover कर सकते हो. मतलब systems एक सही तरह systems लगाए. in place होने चाहिए. और gas station is like basic, it's all about accounting. Yeah. अगर आपकी accounting on point है and you can move forward with your accounting, फिर आप सब कुछ पकड़ लेते हो. Yeah. तो ऐसे मिक्स एंड मैच हम चीज़ें करते हैं. वीव गॉट ग्रेट स्ट्रेंथ ऑफ इन सर्वेलेंस. वी डू लाइव कैमराज. तो हमारे स्टोरों पे अगर कोई भी चीज़ चोरी कर रहा होता है, कुछ कर रहा होता है, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि वी कैच देम थ्रू दैट. अच्छा उस्मान, जो ये इनोवेशंस आई हैं कुछ इस तरह की चोरी की टेक्निक्स में, कल मूसा और हम बैठ के ही डिस्कस कर रहे थे कि ओवर पीरियड ऑफ टाइम लोग इतने स्मार्ट हो गए कि अगर वो स्मार्टनेस वो शायद काम में यूज़ करेंगे तो बहुत एक अच्छे लेवल पे भी हों. जितना वो सेंस वाली चीज़ हम डिस्कस कर रहे थे एक दफ़ा कि किस तरह वो लोग फिगर आउट करते हैं कि आज हमने कितनी चोरी की है. बहुत कम ऐसे इंसिडेंट्स होते होंगे, लेकिन दे हैव बीन स्मार्ट एज वेल. तो वो टेक्निक ये तो ये बताएंगे मजीद, बट वो बदलती जाती है, ऐड ऑन करते जाते हैं. जैसे अगर विंटर्स हैं और जैसे आपने लूज जैकेट पहनी हुई है, तो वो जो सिगरेट का कार्टन होता है वो सीधा जैकेट की स्लीव के अंदर चला जाता है, ठक करके. हाँ, पूरा अंदर. तो ऑलमोस्ट एवरेज पे $100 का आता है, $100 का आता है. तो ठक एवरेज कैशियर जो है वो $100 बनाता है, और अगर रोज का वो एक कार्टन चोरी कर ले तो वो another वो पूरे हो गए उसके. तो वो बाहर जाते हुए जो ट्रैश होता है, ट्रैश में चीजें डाल दी, घर जाते हुए बाहर से ट्रैश बैग उठा लिया, उसमें जो भी डाल लिया. देयर आर लाइक सो मेनी थिंग्स एंड देयर लाइक काउंटलेस पीपल. हर बंदा आता है, और ऐसे सोचो ना, जब आप अपने काम पे होते हो 10 घंटे एवरीडे, वीक के 50 घंटे लगा रहे होते हो, तो उस पर्टिकुलर जगह पे खड़े होके क्या करना है आपसे बेहतर कोई नहीं जानता. तो जो कैशियर होता है उसका हाथ इतना सेट हो जाता है कि if he wants to do something he will do it. You will not be able to catch him till your accounting pops up and be like, okay, this is short, now what to do. Oh. And Usman bhai is so correct on that. I think हम लोग every week ना नए ट्रिक्स हमें पता लग रहे होते हैं कि ये भी चोरी. मैं लिटरली अपने ऑफिस में बोलता हूँ कि यार हर तरीका पता है, मगर every time they come up with a new one यार. ऐसे लगता है कि मैं अभी भी ऑफिस में होता हूँ ना, वो तो ऐसे लग रहा है काम पे पहला दिन आज हमारा, अभी भी समझ नहीं आ रहा क्या करना है. No, or employee theft is actually more crazier for us, for our business, than a regular customer stranger. theft. Yeah, because वो उस्मान भी जो कह रहे हैं ना, सिगरेट कार्टन पे मार्जिन इज लाइक 12-14%, राइट? और अगर आपका पास सिगरेट नहीं है तो आपका स्टोर कुछ भी नहीं करेगा. इट्स लाइक अ मेन थिंग. और वो वही अगर एम्प्लॉय चोरी करे तो आपका लाइक यू जो आपने उधर दूसरी प्रोडक्ट पे बनाया, you losing out on the very premium product. And I think like it goes back to that thing that last podcast when you were talking about, you said you worked as a cashier, so sometimes that helps too to know all the tricks. It helps a lot till date. Like अभी मैं आपको पहले भी बता रहा था, Monday is one day हमारी सिर्फ internal meetings होती हैं, because and उस्मान भाई जो बोल रहे हैं, every week we come up with a new thing. कहते हैं यार ये इस तरह करे थे, अभी इसको इस तरह करना शुरू कर दो, because you have to stay ahead of them. But they are still ahead of you, so आप उसको एक दफ़ा कुछ आता है, then you fix it. Then it all comes down to accounting. We go deep, like item level inventory. Like वो भी करके देख लो, उसमें भी चोरी के तरीके हैं. And I'm sure you know what I'm talking about. So like करते हैं, but like it is there, man. बंदा eventually कहता है इनको ही हायर कर ले, बंदा चोरों को पकड़ने के लिए ना. Like catch me if you can वाला रेफरेंस हो गया ना. But like जो आप अभी उज़ैर जो कह रहा है कि रात में बात कर रहे थे कि technically speaking, if these people really use their brain सही जगह पे, yeah, they will be very successful. But उनको करना ही नहीं है. It's like easy way out, right? But there is a stop to it eventually. Yeah. अगर आपने कभी सुना हो कि सिंगल ओनर ऑपरेटर बहुत दफा आउट ऑफ बिजनेस हो जाता है, Yeah. तो वो और गैस स्टेशन में बहुत लोग आउट ऑफ बिजनेस हो जाते हैं. Yes. तो वो होते इसलिए हैं कि जब आप, जैसे हम 4 बंदे अगर साथ में काम कर रहे हैं, मैं ओनर हूँ, आप 4 बंदे मेरे साथ एम्प्लॉयज काम कर रहे हो, तो ऑल्दो अगर इनमें से कोई एक बंदा शेडी है
और मैं रोज़ मिल रहा हूँ, हम साथ में खाना खा रहे हैं, साथ में रजिस्टर चला रहे हैं सब, तो आप कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि इनमें से कोई एक बंदा जो है वो थेफ्ट कर रहा है, तो that's इवेंचुअली बंदा आउट ऑफ बिजनेस हो जाता है। तो बेस्ट चीज़, अगर कोई गैस स्टेशन वाला या कोई बिजनेस वाला बंदा भी हमारी पॉडकास्ट आपकी सुनता है, तो मेरी उसको ये एडवाइस होगी कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इतने सॉलिड होने चाहिए कि रॉक बॉटम सॉलिड होने चाहिए। जैसे कि एक छोटी सी एग्जांपल है, अगर आपके बैंक अकाउंट से लाख रुपए पड़े हुए थे और 1,000 रुपये कम हो जाते हैं और अब 99 दिख रहे हैं आपको, 99,000, तो यू गोना टेक एक्शन कि भाई मेरा 1,000 कहाँ गया। हाँ, अब गैस स्टेशन में क्या होता है कि वो $1,00,000 की पूरी ग्रोसरी पड़ी हुई है, उसके अंदर को आपके सोडा, बेवरेजेस, चीज़ें मिक्स मैच, सिगरेट, कैंडी वैंडी सब पड़ा हुआ है। अब उसमें से एक एक आइटम अगर कम होता रहेगा, आपको थोड़ी पता चलेगा। सेंट्स में हो रहा होता है, कुछ भी कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। It's a penny business. It's a penny business. So, and I think it goes for every business. किसी भी किस्म का बिजनेस करो तो आपकी जो अकाउंटिंग है ना, वो बहुत सॉलिड होनी चाहिए। Yeah. तो ये SOP डे 1 पे सेट होनी चाहिए। And it's like a death by 1,000 cuts, right? Like small cuts. So then eventually you're like, what happened? Technically speaking, like हम लोग, like the amount of stores Usman bhai has way too many. हम लोग रोज स्टोर्स पे नहीं जा रहे हैं। You know, most of the theft जो मैं पकड़ता हूँ, मैं पेपर के ऊपर देख के पकड़ता हूँ, because it's a plus. Obviously, plus, you have minus, like so many stores. ये How plus can you minus की yeah. game है, and that's why it's very important कि like you stay on top of the accounting. Accounting में सभी आ जाता है, your inventory is there, your bank reconciliation is there, your payroll expense, income. Everything needs to add up. तो वो जो महीने का 5, 10, $15,000 एक स्टोर ने बनाना ना, वो after looking at maybe $2-3 million worth of numbers देखने पड़ते हैं हमें, जिसके एंड पे ये निकलता। तो I think accounting, he's 100% accurate on that. And I wanted to ask another thing as well, is because a lot of people say that you should hire women when it comes to like these, like accounting and like anything where, you know, somebody can steal your clients, because that happens to a lot too. Like I've talked to previous business owners and one of them said, "Ke yaar, I would hire a woman when it comes to like, you know, operations which are really private, because they're less prone to like dhoka tumhe denge wala corruption." Yeah, because they follow the rules and laws. यार it depends. Oh, sorry. It depends. Why? Because let's say हम 4 दोस्त हैं, हाँ. ठीक है, और हम चारों एक कंपनी के अंदर सुपरवाइजर या डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस हैं, सही है। अगर हम चारों ने टीम बना ली, how you gonna? It could be a girl in between. Right? So you always gotta have layers on top of layers. So like जो भी जिसको रिपोर्ट करे, that person needs to specifically do the job. क्योंकि गैस स्टेशन नहीं, कोई भी बिजनेस होगा ना, लाइक जहाँ पे गैस स्टेशन इज अ कैश फ्लो बिजनेस, हर चीज़ बहुत ज़्यादा कैश इन्वॉल्व है, लाइक क्रेडिट कार्ड्स भी आ रहे हैं आपके, डेली के कैश भी आ रहा है। तो लाइक आई थिंक एक सिंपल एग्जांपल है, तो 2 स्टोर्स हैं, ठीक है, एंड मैंने इन्वेंट्री ट्रांसफ़र की तो एक स्टोर से दूसरे पे, मगर मैंने उसको लॉग इन एंड आउट नहीं किया ना, अब वो 5 कार्टन कहाँ गए, वो $500 गया आपका। सो इट्स लाइक आई विल नॉट से कि yeah, I think females are more organized when it comes to office jobs. We have like our fuel reconciliation is all like somehow bhabhi karti hain, you know, like so it's like they're more specific on their stuff because they're more organized. Boys थोड़े हम लोग होते हैं कि ठीक है कर लेंगे, हो जाएगा, हाथ से भी yeah. But I think at the end of the day, how you set your company rules and policies वो बहुत matter करता है। So like, systems and SOPs. System needs to be in place. And you were telling me about like, you know, how you, I don't know if we can talk about, let go of one of the employee because he broke one law, and then we have NDA, and then there was a meeting happened and I said it cannot leave that room. It went and then we let it go. So you need to or set examples as well. Set examples. और उसके अंदर ये फेवरिज्म नहीं है कि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, या मेरा भाई है, या मेरी भाभी है, या मेरी वाइफ है, या फियांसे है, या it could be anybody, right, सिस्टर है। But I think in a company everybody should be treated equally, because at the end of the day पता क्या मुझे, God forbid something happens ना, तो वो हम लोग अगर नीचे जाएंगे, हम जाएंगे, बाकी जितने लोग हैं ना जो जॉब कर रहे हैं, वो जो पेरोल पे उसको जॉब मिल जाएगी। Being a business owner, you're gonna take the hit. 100%. So you have to set the rules for yourself. You're not setting it for them, you're actually setting it for yourself. For yourself. Yes. So and you have to like be very firm on it. Do you have Usman bhai ऐसी similar story? So मुझे ऐसा लगता है कि जो भी चीज़ डिस्क्रीट नहीं है, जैसे जो आपके ओपन काम है कि अकाउंटिंग चल रही है या आपकी नॉर्मल डे टू डे ऑपरेशंस चल रहे हैं, उसमें तो इतना मैटर नहीं करता मेल हो या फीमेल हो। बट जैसे जब आपकी कोई ऐसे डिपार्टमेंट आते हैं जो बहुत, जिसमें सीक्रेटिव या प्राइवेसी रिलेटेड काम चल रहे होते हैं, तो उसके अंदर ऐसे प्रेफरेंस जेनेरिकली मार्केट में दी जाती है कि जैसे लोगों की जो असिस्टेंट्स होते हैं ज़्यादातर वो फीमेल होती हैं। तो उसमें ये होता है कि आई माइट बी रॉन्ग, बट ऐसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे औरतों के अंदर शायद थोड़ी खुदा खौफी ज़्यादा होती है, या ये होता है कि दे टेंड टू फाइट
less if they go against you or something like that. Like they would not risk taking ability हाँ, we would say तो is lower उसके in अंदर that, और yeah. एक आपको काम फीलिंग आती है कि यू नो देयर इज अ लेडी, उसको वो उसके पास आपका सारा सामान है, तो एक आई थिंक कामनेस आती है, तो उस वजह से जो है वो जो ऐसे रोल्स के अंदर जो है वो आई थिंक औरतों को ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, बट आई थिंक इट रियली Yeah. डिपेंड्स ऑन द पर्सन. A And woman can be Yeah. a two, but at the same time. And you know, another topic I want to touch upon was I wanted to like go to like you know कि एक अगर कोई लड़का देख रहे है, कोई you know शादीशुदा बंदा भी अपना business वगैरह start करना चाहता है, we can go on that later. But for first I want to touch base on the oil prices, because obviously rising oil prices and the ongoing war and everything. Have you seen like a lot of changes in the business when it comes to like, because obviously client बहुत affect, customer बहुत affect होता है सारा कुछ, तो कोई robbery बढ़ गई हो या कोई बहुत ज़्यादा you know scene bad हो गया, या फिर पीछे से you know like because the higher prices कोई effect हुआ market के अंदर? So देखो पहले when it started in end of March, right? Yeah. पहला महीना, believe it or not, I don't know उस्मान भी के end पे क्या हुआ, horse sales went up, you know, but I know it happens every time, especially in Texas, कि लोग panic कोई situation में storm आते भी होते आता है ना, panic, तो people Yeah. start hoarding stuff, right? कि gas भी extra जा रही है, and people are buying stuff in the store. मैं I have mentioned it before too कि इन times पे लोग वो चीज़ आके store से खरीदते हैं जो हम बहुत कम रखते हैं, मगर वो 6 महीने में शायद एक कैन बिकता है, right? So first month went like that, and then it kind of slowed Yeah. down, because now people were worried कि अच्छा लोगों को लगा कि अभी चला है, and then it went too much ड्रामेबाजी चली थी कि अच्छा जी वीकेंड के ऊपर होता था कि stop हो गया है, and then Yeah. people made a lot of money at the back end and all that, right? Yeah. So I think it affected 100%, because जब gas price ऊपर जाती है ना मूसा भाई, तो it doesn't matter gas station business है कोई भी, Yeah. everything goes up. Cost of good goes up. Why? Because transportation went up, diesel went up, oil went up, everything goes up. Yeah. Supply and उसका कोई हमें problem नहीं हुआ, but yes, now recently this month we have seen some changes in pricing going up. But ये नहीं हुआ कि एकदम से जो डॉलर की चीज़ $1.50 की हो गई, but because the government want to make sure if this happens, then people will come out on the. मगर अगर आप मेरे से पूछो कि होगा कि नहीं होगा, होगा. There is always a slow effect. COVID में भी यही हुआ था. They were holding on to Yeah. it. It went up, but it never went down. तो कोविड के अंदर एक वो थी कि जी हमें रेड बुल नहीं आ रही, कोक नहीं मिल रही. Why? Because टिन नहीं आ रहा था, right? तो prices went up, for example. अब कोविड आया, कब का चला भी गया, but prices are still there. Like cost, like You know, it took a never little went bit dip, down. and then I mean, I remember like मैंने कोविड में travel किया था, एक पूरे plane में सिर्फ 4-5 लोग थे, and then there was you know a time like that. It went down, but then you're right, like it went up and never came down. No, वो प्राइस कभी नीचे जाएगी नहीं दोबारा. लाइक सो अब आप 10 दफ़ा बोलो, वो पाकिस्तान वाले सीन नहीं है यहाँ पे. पाकिस्तान में तो लोग सड़कों पे आ जाते हैं कि जी करो कम, ये करो, गवर्नमेंट यहाँ पे वो बोला यू कैन नॉट कम ऑन द रोड, राइट? व्हाई? बिकॉज Yeah. यू विल गो टू जेल. लाइक करते हैं लोग सिंपल इज yeah, राइट? I प्रोटेस्ट mean- करोगे, आप कितना कर लोगे? कितना कर लोगे? यू गोइंग अगेंस्ट द लॉ, एंड But you know, people in America are also complaining at this point. You know, like America, people say still is a land of dreams and opportunities, and it is. I mean, for the most part. But even now, in people like in America, they're saying like, you know, it's going down, economy is going bad. You see it on, because I'm a younger generation relatively. I see it on TikTok, Instagram, वगैरह हर जगह पे. You know, there's always like job workers, especially complaining about how stuff has changed. Even entrepreneurs as well. So, any like insights on that? What do you think like the market is shifting, or do you think like it's gonna, you know, regain the balance a little bit back, like once the war situation settles? Like buying wise, one thing good happened for us. We are getting more lending on the real estate part of it, because people wanna, like the lenders and the banks, they still want to give you loan, because real estate is something which will hold value no matter what happens, right? Yeah. So उसको अगर साइड पे कर दो, like from आम बंदा कौन है? Like हम भी आम बंदे हैं, हम cost of living क्या है आपकी? Yeah. It did change, and I think like it started from COVID and it never went down. I keep saying COVID again because that time even the labor went up, right? Yeah. Because cost of goods went up, so labor went up. अब वो labor तो नीचे नहीं हुई है आपकी, और क्योंकि आपकी कोई और चीज़ लाइफस्टाइल नीचे नहीं हुआ है. कैलिफोर्निया पीपल यूज्ड टू से कि इट्स मोर एक्सपेंसिव टू लिव, मगर मिनिमम वेजेस आर, इट्स एक्चुअली सेम थिंग है. वो हम लोग को ज़्यादा लगता है क्योंकि हम टेक्सास से कैलिफोर्निया जाते हैं, कहते हैं यार वो $12 की सिगरेट की डब्बी है. अभी यहाँ पे भी वही हिसाब है. हो गया ऑलमोस्ट. डेलिस में इतनी प्राइसेस हो गई so ऊपर. I Yeah. think it affects in the long run, and it takes a toll for these things to stabilize and everything. But I think yeah, trust me, Texas is good in so many ways. हमारे पास यहाँ पे ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है. सही है. That's a big issue. Yeah. So क्या है कि गैस स्टेशन हम लोगों का काम अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी सेट रहता है at some point, because per household there are like 2-3 cars. That's the data. Yeah. But जहाँ पे आप यहाँ पे भी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन डाल दो all around
लाइक आई लिव इन साइप्रस, शुगरलैंड में नहीं है, हाँ मिड टाउन में चल रही है, मेडिकल सेंटर पे चल रही है, बट लाइक कौन लोग कह रहे हैं, स्टूडेंट्स रहते हैं वहाँ पे सारे, राइट? Yeah. So they want to use that tram or like bus service, but I think it affects and it's going to stay there, but कुछ ना कुछ चलता रहता है वो. आई थिंक एक चीज़ इसमें ऐड ये करूँगा कि इस सब के अंदर खाली जो एक मेजर मसला ये हुआ है कि जो एक एवरेज सिटीजन है जो रहता है यहाँ पर, वो हर बंदा परेशान हो गया फ्यूल की प्राइस की वजह से. Yeah. क्योंकि अगर सिंपल है कि अगर मेजॉरिटी जगह की बात करें जाए तो गैलन के ऊपर रियलिस्टिकली डॉलर बढ़ गया एटलीस्ट. Yeah. हम लोग 250 की गैस बेचते थे, अब 350 350 की है. ह्यूस्टन की बात करते हैं, और ऑफ कोर्स हर स्टेट का अलग अलग है, हर सिटी की अलग अलग है, बट ऐसी जेनेरिक बात बताता हूँ, डॉलर बढ़ गया. तो जो एवरेज बंदा है जो टेक्सास के अंदर, जो मैं अपने लोगों की बात कर रहा हूँ जो मेरे साथ काम करते हैं जो आगे पीछे हैं, तो उन लोगों की महीने की $200-250 की का जो है वो फ्यूल का अलाउंस चेंज हो गया. सो फॉर एवरेज पर्सन जिसकी ज़िंदगी में $200-300 फालतू में, वो तो ये बोल रहा है कि ट्रैश में चले गए. मैं तो हाँ, $2.5 का फ्यूल it's लेता like था, मैं somebody- 3.5 का ले रहा हूँ, डॉलर फालतू चाहिए मुझे. तो उस वजह से जो है ना एक लोगों के अंदर एक बहुत फ्रस्ट्रेशन बिल्डअप हो गई है, और जो फ्यूल वॉल्यूम है वो ड्रॉप हो गया. जैसे पहले अगर एग्जांपल है, लोग यहाँ ऐसी हाइपोथेटिकल एग्जांपल देता हूँ कि कोई यहाँ बैठे हैं, मैं बोलते हैं चलो गेल वेस्टर्न ड्राइव करके आते हैं, बीच को देख कर आ जाते हैं, राउंड वॉक करके आ जाते हैं. नाउ दे वुड थिंक अबाउट इट एंड दे वुड नॉट डू इट. 100%. तो इस तरीके से जो है ना वो ये एक मेजर प्रॉब्लम हो गई है कि जो एवरेज सिटीजन है वो हर्ट हो गया, और फ्यूल इज समथिंग वेरी बेसिक. इसलिए मैं टेस्ला पे आया हूँ ह्यूस्टन चला के. नहीं तो फिर इलेक्ट्रिसिटी भी महंगी, एवरीथिंग it Yeah, I'm gets just kidding. connected You're everywhere, right, right? you're So right. That's against our business. Yeah. Come on, bro. You gotta watch out. Actually, I was gonna ask you guys, like, do you guys not like ever think to invest in like Tesla stations? Because I mean, we see them all around, and देखो, like, मैं उसका एक पता क्या आंसर करता हूँ, बहुत बहुत सिंपल आंसर करता हूँ, लाइक इलेक्ट्रिक वर्सेस गैस, राइट? yeah, अभी दुनिया किस चीज़ के लिए लड़ रही है? oil के लिए. तो it's never gonna go away. No, it's not gonna Right. go away. I'm So- not saying like as So in what we did, Yeah. we do have some electric like chargers जो हमारी premium top notch areas हैं, right? yeah, But it makes sense on a travel center. आपने highway पे ज़्यादा देखा होगा, why people are stopping? Because उनके पास choice ही नहीं है अभी. Like if I wanna go from here to Dallas, मैं एक charge में जा ही नहीं सकता हूँ, तो मैं रुकूंगा. But for the travel center person, it makes sense because वहाँ पे restaurant है, फिर वो रुकेगा, वो आधा पौना घंटा आपको wait करना पड़ेगा. So I think it's not like city के अंदर I don't think so it's viable. Why? Because हर कोई जो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चला रहा है वो शहर में कर रहा है, रात को उसने अपने घर जाना charge करना तो है, वो yeah. कभी स्टोर पे आएगा नहीं. तो और चार्जर्स आर एक्सपेंसिव, 15 से लेके $40,000 तक का चार्जर है, राइट? सो one Yeah. stall. yes, and then Commercial charger. commercial charger, That's and you're still crazy. paying electricity on it. तो अगर आप $50 का किसी ने चार्ज किया, उसमें कितने पैसे बना लिए होंगे? $5, Yeah. $6. So it's like it makes sense for a highway store, but I don't think so. Store के अंदर उस्मान भी, what's your input on ऐसे ही that? है. Yeah. Pretty That is crazy. And I think in the states where electric is like being really promoted and is growing, वहाँ पे make sense करता है. अगर आपकी उस particular states के अंदर, cities के अंदर gas stations हैं, तो of course you got to stay in the game, आपको लगाना पड़ेगा. आप सैन फ्रांसिस्को में अगर आपका गैस स्टेशन है, या ऑस्टिन के अंदर है, डाउनटाउन में आगे पीछे इधर उधर, तो you would need it, no harm. Yeah. But जैसे ह्यूस्टन है, I don't think it's much needed at the point. At the moment, और yeah. फिर हाँ but- travel centers पे of course it makes sense. You know, I wanted to ask you guys another question because, you know, you guys handle businesses at such a large scale and, you know, you're constantly scaling as well. How do you make sure everything stays in compliance? Like, I know you told about SOPs and systems, वगैरह, but, you know, legality के भी बहुत ज़्यादा issues आ जाते हैं अक्सर. Like, and, you know, once you're like, well, you're famous, but on top of that, I mean, the most important aspect is when you're rich and people see, especially हमारे देसी culture में, I mean, like, you know, एक बंदे के पीछे सारे पड़ जाते हैं and then, you know, people come from all angles. And how do you guys maintain that and manage that and stay sane? I mean, you know, I've just started out in the entrepreneur journey in this. Anytime it happens, you know, it does something, man. It's like it takes a... अपनी टीम ने betray किया था. मेरी अपनी टीम ने मुझे betray कर दिया था, मैं तो छोड़ ही दो. तो मैं तो अब 2 साल हो गए, लेकिन अभी भी अक्सर मैं सर पकड़ के बैठ जाता हूँ. And you know, I'm getting in the habit to be like you guys eventually, where you know, like I have proper systems built. Normal but है यार, आज 2 lawsuit आए हुए. चलो, हाँ, वही चलते हैं, लॉसूट chill है, ऐसे सही ही. बात है. अभी तक you know उस लेवल तक शायद पहुंचा नहीं, हाँ. लेकिन पहुंच जाऊंगा इवेंचुअली. वन आप बताएं शार्क टैंक के बाद कोई ऐसा So experience. basically it comes from the higher management. Yeah. अगर आप खुद compliance follow करना चाहते हो, तो फिर आपकी जो पूरी टीम है और जो आपकी पूरी कंपनी की हायरार्की है, they would be bound to उसको follow करने के लिए.
तो ये लीडरशिप से शुरू होती है सही। कि अगर आप कंप्लायंस शुरू करो, उसके कोड ऑफ कंडक्ट में चलो, तो आई थिंक जो भी काम आपको करना है इट्स वेरी सिंपल, यू कैन फॉलो द गाइडलाइंस, बट लॉजिक ये है कि बंदा फॉलो करेगा नहीं करेगा। तो हाँ। उसका खाली सिंपल तरीका ये है कि जो टॉप मैनेजमेंट लीडरशिप है वो अगर अपने एम्प्लॉय को, मैनेजमेंट को डायरेक्शन देगी कि फॉलो करनी है, तो फिर होगी, सब कुछ फॉलो होगा। Yeah. और फिर अगर कोई चीज़ मिस हो जाती है तो ठीक है, जेन्युइन एरर्स हर जगह होते हैं और उसका एक रूम होता है, तो विच इज़ ओके। अगर कोई जेन्युइन मिस्टेक है ठीक है, उसको फिर मिल के मुँह दे लेंगे, बट उसके अलावा तो यही है कि भाई अगर बॉस बोलेगा फॉलो करो तो जो एम्प्लॉय है उसको करना पड़ेगा। बॉस ही बोलता है कि नहीं नहीं हम कोई शेडी काम करते हैं, इस तरह करते हैं, उस तरह करते हैं, तो फिर जो बॉटम टेयर होगा या जो मिड टेयर होगा, या तो फिर हर बंदा उसी स्ट्रक्चर के अंदर चलेगा कि ठीक है वी कैन टेक शॉर्टकट्स। तो आई थिंक यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। और इसमें एक वो भी तो हो जाता है, बंदा थोड़ा सा कैजुअल भी हो जाता है अपने क्या कहते हैं एम्प्लॉयज़ वगैरह के साथ। अक्सर आई हैव मेड दैट मिस्टेक एंड यू नो लाइक आप, क्योंकि यू वांट टू बी अ गुड पर्सन टू देम, राइट? यू वांट टू बी लाइक यार मैं तुम्हारा हूँ तो सही बॉस, लेकिन मैं तुम्हारा वो पे फरौन नहीं हूँ, तो मैं छितर मारूंगा रोज आके, बट आई वांट टू बी नाइस टू यू, बट एट द सेम टाइम समटाइम्स यू नो दैट नाइसनेस, हमारी प्रोडक्टिविटी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, मतलब उस Yeah. एटीट्यूड की वजह मतलब से उसका बहुत सिंपल लॉजिक है, जब काम के टाइम पे जब सीट पे बैठोगे तो काम करोगे। अब सामने जो भी है, आपका दोस्त है, भाई है, कजन है, जो भी, अगर आप अपनी कुर्सी पे बैठे हुए हो तो कुर्सी के साथ जस्टिस करो। मतलब और जब बिजनेस आप- अगर इफेक्ट हो हाँ, रहा अब है तो आप there's काम no- पे बैठे हुए हो तो फिर आपको उस पोजीशन के साथ जस्टिस करना है, कि ना कि ये मेरा दोस्त है या वो मेरा जानने वाला है। Yeah. अब यहाँ से आप खड़े हो जाते हो तो बस ठीक है, फिर हम दोस्ती आ रहे हैं, फिर चलो घूमते हैं फिरते हैं, सही। चिल करते हैं वो अपनी जगह। 100%. दैट्स वेरी सिंपल। मतलब एंड ऑफ द डे तो घोड़ा घास है ना, Yeah. दोस्ती तो नहीं हो सकती ना, काम के टाइम तो काम करना पड़ेगा। और वो ये फिर कस्टमर इफेक्ट होता है इवेंचुअली। अच्छा, as we coming to you, the same Yeah. question, legalities वाला, have you faced something similar? क्योंकि आपका जो मैंने जर्नी देखी है over past 2 years, वो बहुत तेजी से ग्रो किया है, so you have experienced something similar as well? Too much of everything. Too much of legalities and constraints. नॉर्मल ट्यूसडे होता है अब तो आजकल। और you know, I don't know if you remember me from last time, मैं ना बहुत सिद्दीक पंजाबियों में खुल के बात आपने वो बताई थी पूरी स्टोरी, वो जो कितने $3 मिलियन पता नहीं कितने ले गया था। So अभी क्या हुआ कि अब you grow faster is the problem also, right? So grow 100%. faster में क्या है जी, illegal money है, money laundering के पैसे हैं, पता नहीं कहाँ, वो पाकिस्तान से आ रहे, पता नहीं पाकिस्तान से आते कैसे मैंने सुना है लोग भेजते हैं, हाँ। but नहीं ला पा कभी रहे आप होते पैसे सिखों को ला रहे हो यहाँ पे, कैसी कैसी बातें लोग कर रहे So हैं। how you handle it, and Uzair knows a little bit of it. So देखो, we have corporate attorneys, right? So one thing I have learned over the years, and especially business आने के बाद, मैं react नहीं करता लोगों को directly, right? You can go say whatever you want to say about me, I'm perfectly fine, but the minute you give me something on black and white, I'm going to take you to cleaners, which means I tell my attorneys, they're going to come after you, and abhi actually ek chal bhi raha hai, and now they want to do settlement with you, but mujhe paisa chahiye nahi hai. I'm just trying to put a point out there, like, you're going to do this, no problems, you're going to have to deal with my legal team, Yeah. क्योंकि rights यहाँ पे सबके equal है. Yeah. बट बॉटम लाइन उसकी उजर भी पता क्या, और मूसा भाई और उस्मान भी एग्री करेंगे मेरे से, आप अपने बिजनेस को क्लीन रखो. पीपल गोना कम से लेफ्ट एंड राइट कि ये अयाज भी ये कर रहा है, उस्मान भाई ने भी ये कर दिया, मूसा भाई भी ये कर रहे हैं. भाई आई कीप माई बुक सो क्लीन. हमारी अकाउंटिंग ऑफिस में है ही नहीं, इट्स आउटसोर्स टू अ थर्ड पार्टी ऑडिट फर्म है. Go deal with them. Go. As long as there's no problem with the IRS, anything, no. जो करना you है are is a third protected. party, because why? These are the things जो हमने over the years, जैसे अभी it goes back to the way we started, के जो हमारे से सीनियर लोग यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, मैंने उनसे सीखे हैं, टेक्निकली स्पीकिंग, कि उन लोगों के साथ ये इंसिडेंट हुए हैं, what they did with it, and how we sit down, when we sit down, we discuss कि यार अच्छा इस बंदे ने ये किया. तो I think you gotta have a very strong legal team. You don't have to panic. हाँ, मैं day to day अपनी लाइफ उसको अफेक्ट नहीं करने देता. Doesn't matter क्या चल रहा है, मैं I'm focused on my work, because that's why you have that legal setup done in a way कि this is their job to do handle all of it. अब मैं खुद बैठ के थोड़ी कॉल करूँगा कि मैं उसको कॉल की, हाँ भी तूने मेरे बारे में ये बोला था. I don't have time. I think, and I was telling you earlier, sometimes you know इस तरह की marketing में it's better. Negative marketing. Negative marketing is better. Like why? Because हमने तो कुछ किया ही नहीं. Actually जिस बंदे ने किया उसने तो फैला दिया नाम. Because the minute मूसा पता क्या होता है कि, और the minute आप मेरे बारे में बैठ के बात कर लोगे, मगर the minute you're gonna meet me और उस्मान भी ना, जब हम फेस वो बात निकलेगी, and the minute you hear from us, आप लोग यार वो बंदा बिला वजह पे मेरा टाइम. अच्छा मूसा, आई हैव सीन वन मोर थिंग एज वेल, कि समटाइम्स आप किसी से शेयर भी करते हो ना इस तरह की चीज़, यू जस्ट वांट टू किसी को डिस्क्रेडिट करना है किसी चीज़ के लिए ना,
वो बंदा भी उस बंदे से इम्प्रेस हुआ होता है somehow, वो जाके वो बात उसको बता ही देता है. 100%. You are just venting out your Well, thoughts. when मैं you're इसकी बुराई going up करूंगा. at the end of the day, you Just need to be to, loyal yeah. to that person, वो जाके आपकी बात भी बता देगा बताता उसको है. और ना. अभी एक मजे की बात बताता हूँ. You said I'm into cars, right? You know मेरे बेटे को पसंद है तो I हाँ. like it too, right? Yeah. तो अभी रीसेल मुझे पता लगा कि मेरी सारी गाड़ियाँ salvaged water damaged है. बट किसी ने इतना टाइम लिया है कि निकाल. यार I don't need to prove you. अगर salvage में है ना मेरे पास है. इमेजिन सुबह उठे वो कॉफी पी अपनी के आज याज भाई की गाड़ियां ना मैंने प्रूव करनी है सेल्वेज है सारी. कितना आपको टाइम गाड़ी- होता है इन लोगों के आपको पास गाड़ियों है? का शौक है? Yeah. आपके बेटे को है? मेरे बेटे को है. नहीं तो सेल्वेज फ्री होती है. So पहले वही तो कह रहा हूँ. वही मैं कह रहा हूँ भाई उसमें भी पैसे लगते हैं. तो बेसिकली उस्मान भी my son I have an 8-year-old kid. Saifu. माशाल्लाह. मैं मूसा को बता रहे थे he has a 2-year-old kid. तो Yeah. जब 2 साल का था ना तब से he got into cars. Oh wow. आप उसको गाड़ी दिखाओ मॉडल वो बताएगा कौन सा है वो. सो आई गेट हिम ऑफ कोर्स आई लाइक इट Of बट course. रीजन हो जाती है कि ही सेज दैट हमें उसके नाम पे बिल. हाँ बिल उसके उसके नाम पे नाम पे बेल. भरते वो हैं. यहाँ तक है कि उजैर भाई ने जाके कुछ बोल देते कि ए सैफू यू लाइक दिस कार. सारी नेम प्लेट से बेसिकली सैफू का नाम है. Oh, all the- wow. But all he's the famous places not Saifu by his on it. name as well. एक certain crowd के अंदर सैफू के पापा के नाम से भी मशहूर है. अच्छा. तो एक certain जो एरिया है वहाँ पे इस नाम से जाने बट जाते पता हैं. क्या होता है उसमें भी लाइक आप लोगों की जो नॉलेज के लिए मैं बोल रहा हूँ कि लाइक टू फास्ट यू ग्रो इट्स अ प्रॉब्लम नॉट फॉर यू इट्स फॉर पीपल बिकॉज समटाइम्स मैं आपको जनरली बताता हूँ. मैं उस्मान भाई को आई न्यू अबाउट हिम व्हेन आई यूज्ड टू वर्क एट सम अदर कंपनी. आई मेट हिम थ्रू उजैर भाई ने हमारा एक डिनर स्केड्यूल किया था. बट आई रिस्पेक्टेड हिम एंड हिज ब्रदर. मैं एक्चुअली उमेर भाई को मिला हुआ था. जी. सही है. एंड because what they have done या मैंने किया या आप कर रहे हो ना it takes man I know what it takes to be there where we are sitting या he is sitting right. तो वो मैं कभी इनके बारे में वो नहीं बोलूँगा. ये बोलेगा सिर्फ वो बंदा जो कर नहीं पाया है और वो कर. Yes. मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ वो इसलिए बोल रहा है बिकॉज एक तो उससे हुआ नहीं और मगर उसने ट्राई भी नहीं किया. वी हैड सीन डेज एंड आई एम श्योर दे वेंट थ्रू द सेम थिंग वेयर वी हैव सीन रेस्टलेस नाइट्स. The nights man, the nights yeah. 20 घंटे काम करने के बाद भी नींद इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि सुबह उठ के करना कि यार अभी यहाँ पे जाके ये भी करना है. अच्छा तो कुछ लोग अपने इनकॉम्पिटेंस जो है ना और अपने जो फियर्स हैं वो इस तरह फिगर आउट करते हैं. तो और ये चीज़ बहुत नॉर्मल है. पहले मैं सुन रहा था देख रहा था मुझे नहीं लगता था ऐसी चीज़ है. लेकिन आई हैव सीन दिस कि वो जो हेट्रेड है वो जो जेलसी है ना आपको समझ में नहीं आता कि व्हाई एट दिस लेवल. मतलब आपने किसी के लिए इतना बुरा तो नहीं किया होगा. सो व्हाई आर यू गेटिंग दिस हेट. सो दैट इज दैट इनकॉम्पिटेंस कि या तो वो जिस लेवल पर है मैं नहीं पहुंच पाया या मैं अचीव नहीं कर पाया. देयर माइट बी सेवरल रीजंस. हो सकता है दूसरे के लिए ग्राउंड बना हुआ हो आपके लिए वो चीज़ नहीं थी. तो ये वाली चीज़ बड़ा मुश्किल होता है एक्सेप्ट करना. और हर लेवल पे मिलती है. यू गाइस आर लाइक एंटरप्रेन्योर सक्सेसफुल एंड देन सोशल मीडिया पे भी एक कंटेंट क्रिएटर दूसरे को दे रहा होता है. एंड आई एम लाइक एवर सिंस माय किड वाज बोर्न आई स्टॉप डूइंग एनी ऑफ लाइक मैंने किसी पे तबसरा करना छोड़ दिया. मैंने कहा मैंने करना ही नहीं. कल को वो बड़ा होता हो कि इसके अब्बू देखो क्या काम कर रहे हैं. of course. And why do you want to make enemies? Like you will have enemies. That's the यार thing वो too. Like देखो when you're gonna grow. automatically बनती हैं हाँ. राइट. और आपको पता भी नहीं होता है कि ये कब हुआ है राइट. Yeah. और दूसरा जो आप लीगल वाला क्या कह रहे हो ना एनी टाइम इफ इट दिस इज फॉर द पीपल लाइक आप भी बिजनेस में हो या कुछ है डोंट ट्राई टू फाइट योरसेल्फ. किसी को मेरे बारे में या आपके बारे में कोई बुरा कह रहा है ना लेट देम से व्हाटएवर दे सेइंग. हाँ इफ इट कम्स टू अ पॉइंट वेयर यू नो यू कैन गेट देम डाउन लीगली by the court system only do that. खुद जाके लड़ने का या कमेंट करने का बिकॉज क्या कि काउंटर डेफेमेशन केस भी हो जाता है राइट. Yeah. सो यू ऑलवेज वांट टू मेक श्योर कि आपको तो डिफेम कर रहा था कोई बंदा वो उसके फाइट बैक अपने आपको डिफेंड करने के चक्कर में देयर वाज अ काउंटर एंड यू हैव टू बी केयरफुल हु यू सेइंग व्हाट. सो ये बल्कि मेरे से उजैर भाई ने 2 महीने पहले पूछा कि याज भाई ये सब कुछ चल रहा है आप एक इंसिडेंट चल रहा था ही न्यू तो आप इतना चिल कैसे रहते हो. मैंने कहा भाई आई हैव अ बिग प्रॉपर बिजनेस टू रन. मेरे पास इन चीज़ों के लिए टाइम ही नहीं है यार. मुझे मेरा लॉयर बता देता कि ये हियरिंग पे ये हुआ था दिस इज व्हाट हैपेंस एंड रिसेंटली दे एक्चुअली रीच्ड आउट टू माय लीगल टीम के वी आर विलिंग टू डू अ सेटलमेंट. मुझे उनके पैसे नहीं चाहिए बेसिकली यार. पैसे इस तरह किसी के पैसे लेके आप कोई पॉइंट प्रूव नहीं कर लोगे बहुत दिन खा नहीं लोगे. द पॉइंट इज कि यू शट देम डाउन. लाइक एक को करोगे ना बट डू इट सो हार्ड कि अगले एग्जांपल सेट हो जाए कि अच्छा भाई ये बंदा पागल है ठीक है. एंड लिटरली अच्छा इसके साथ ये वाला पंगा करेगा ये कोर्ट में ले जाता है. उस्मान से मैं यहाँ पे रिएक्शंस के ऊपर हम बात कर रहे थे कल भी डिस्कस कर रहे थे. ये जो रिएक्शन होता है डू यू थिंक इवन इफ यू हैव दैट ऑल दैट एम्युनेशन विद यू कि आपको पता है सो डू यू थिंक इस तरह की सिचुएशन अगर कोई फेस करे तो फौरन रिएक्ट करना चाहिए और यू शुड टेक टाइम यू शुड एनालाइज द सिचुएशन. बैटलफील्ड में तब आए बंदा जब प्रिपेयर्ड हो क्योंकि आई हैव सीन कुछ लोगों के लिए काम भी करते हैं चीज टू रिएक्ट राइट देयर. नहीं मेरे ख्याल से दरगुजर आगे बढ़ते रहो unless it's at that point where you be like okay it's harassing me or it's something which is disturbing me
तो ठीक है, फिर आप भी पूरा एक्शन And ले I can लो, actually फिर आप भी relate नहीं to रोको, this. Yeah. पूरा एक्शन ले लो. मैं ये नहीं बोल रहा कि डर के छुप के बैठ जाओ अंडर द I टेबल. can relate to this. I waited 6 months. For the recent For one? the घर गुजर I वाला gave period. him so much of ऐसे यार कर रहे हैं बेवकूफ, but it came to a point where I had to take action because अगर मैं वो नहीं लेता तो then it was gonna backfire me, right? Yeah. And you have to understand we deal with banks. क्योंकि we लोग deal कभी with कभी चेक भी lenders. करते हैं कि हाँ, क्या हाँ. हो रहा है, नहीं रिएक्शन तो क्या आ रहा है. ज्यादती तो अपने साथ भी नहीं करवा सकते. Yeah, exactly. काइंड ऑफ That is हराम काइंड ऑफ so सिचुएशन कि bad. अपने साथ भी नहीं ज्यादती होने दो और किसी का करो भी नहीं, बस फिर हाँ, उसके that's बाद जो मिडल में आता है फिर यू टेक देम. किसी को छेड़ो नहीं, कोई छेड़े तो उसको छोड़ो नहीं. सिंपल है ना, Oh. हाँ, हाँ. सिंपल फॉर्मूला. It's the इसी best तरह. formula. अपने काम से काम रखो, हाँ. कोई आपका काम खराब करे तो फिर आप उसको सेट कर दो. नहीं, तुम्हारा डिजिटल मीडिया का हमने देखा कि ओवरऑल आफ्टर शार्क टैंक यू गॉट इमेंस लाइक्स एंड लव फ्रॉम पीपल एज वेल. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस पर्टिकुलरली, क्योंकि ही वाज द वन जिनके लिए बड़ा मुश्किल हुआ था ये ट्रांजिशन, एंड पीपल वर लाइक ये क्या चीज़ हो रही है, एंड वी समहाउ कन्विंस्ड हिम के बैठ जाया करे बिकॉज योर एक्सपीरियंस इज गोइंग टू हेल्प सम अदर पीपल एज वेल. ऐसे ही इट्स नॉट ओनली अबाउट कि आप सिर्फ सामने आ रहे हैं, बात कर रहे हैं और जा रहे हैं, इट्स हेल्पिंग आउट एज वेल. लाइक मूसा आज से 2 साल पहले he was way too young, अभी भी छोटा है ये, उस टाइम पे सीख रहा था, एंड उसने सारी चीजें जो ये इंटरव्यूज वगैरह हुए हैं ना, मैंने उसी वो से सीख सीखा के एक्चुअली. इसने पूरा बिजनेस डेवलप किया ओवर अ Wow. पीरियड ऑफ 2 years. तो ये चीज थोड़ा सा इसके बारे में बताओ. तो जब शार्क टैंक मैंने जाके करा तो इट वाज वेरी न्यू फॉर मी, और हम लोग हमेशा गैस स्टेशन पे ही हमारा फोकस था, गैस स्टेशन ही हम चलाते थे, दैट वाज आवर ब्रेड एंड बटर. तो जब इतने सारे डिफरेंट बिजनेसेस आके पिच हुए और उनकी फिजिबिलिटीज और नंबर्स हमारे सामने खुले, Yeah. तो आई वाज लाइक ओ माय गॉड, लगता है हम गलत बिजनेस में हैं. तो इट वाज वेरी आई ओपनिंग पहली चीज़. और फिर उसके बाद हम वो शो जो था वो मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए ख़ास तौर पे और इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा था, क्योंकि वहाँ पर कोई फंडिंग का कोई तरीका नहीं है सच. कोई किसी को बैंक्स जो हैं वो बेसिकली फ्रेंडली नहीं है, और बैंक से अगर हाँ. आपको कुछ लोन लेना होगा तो आपको अगर कोई यंग लड़का एंटरप्रेन्योर है तो वो अगर अपने फादर को बोलेगा कि डैड मुझे जो है घर के पेपर दे दें या दुकान के पेपर दे दें, मैं जाके बैंक से करा वो लेने लगाऊं लोन, तो दिल किक हिम आउट. दैट्स जस्ट द माइंडसेट ओवर देयर. आई एम नॉट सेइंग इट्स राइट और रॉन्ग, बट दैट्स हाउ इट इज. आधे लोग जो हैं वो एक रिलीजियस माइंडसेट से कट जाते हैं कि हमें बैंकिंग नहीं करनी. तो और जो अपने दोस्त यार या किसी रिश्तेदार से पैसे मांगता है तो वो उसके बाद उसका फ़ोन नहीं उठाता. हाँ, तो एक बिल्कुल. हमारे मुल्क का एक नॉर्म है वहाँ का. तो लेकिन सपोर्ट भी तो नहीं करते ना बिल्कुल भी. लाइक कोई करना भी चाहता है, ठीक है, आई मीन वहाँ पे एक मुझे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम लगता है ना, लोगों का माइंडसेट वाकई बहुत ख़राब है. लाइक ये जो बेरोज़गारी वाला है, जी गरीब है तो इसकी कर दें, ये कर दें, वो कर दें. इनफैक्ट आई यूज्ड टू डू दैट अ लॉट. और जिसकी मैंने एयाज भाई, उस्मान भाई फ्री में हेल्प की ना, वो मेरा दुश्मन ही बना आगे जाके. जिसने मुझे पैसे दिए ना, मैंने उसकी हेल्प की, उसने कुछ कर वैल्यू दिया. नहीं होती है, basically वैल्यू जो की है. बात है. लाइक Take you for granted, right? like because like once you stop doing that thing, they get used to it, and then like इससे कोई चवल आदमी है ही नहीं. नहीं फिर बंदा आप कहता- बुरे हो जाते हो ना, आप because बुरे हो कर जाते नहीं हो. रहे हो. Yeah. तो लॉजिक ये है कि जब शार्क टैंक हमने वहाँ पे करा तो बहुत अप्रिसिएशन इसलिए हमें मिली क्योंकि वहाँ पे कोई और फंडिंग का तरीका नहीं था. और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था कि कोई भी आके अपना बिजनेस पिच कर रहा है Yeah. और हम लोग उसके साथ फंडिंग डील्स कमिट कर रहे हैं, और उसकी वजह से एक थोड़ा सा वी मेड अ ब्रांड आउट देयर टू. तो उसके बाद भी हमें बहुत लोगों ने अप्रोच करा और कई हमारे कनेक्शंस और नेटवर्किंग हुई, और तो एक ओवरऑल जो था वो बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक्सपोजर मिला. और हम लोगों को FBR जैसे जो एक लोकल इदारे थे उन्होंने भी रीच आउट करके बहुत अप्रिशिएट करा था, एंड दे प्रोमोटेड इट कि डोंट वरी अबाउट इट, वी गॉट योर बैक. कि किसी को कोई घबराने की बात नहीं है, क्योंकि एक पूरी वो ड्राइव चली थी कि लाइक लोग अपने नंबर दिखा रहे हैं, लाइक दे कुड गेट इन ट्रबल एंड ऑल ऑफ दैट, बट द गवर्नमेंट वाज वेरी सपोर्टिव. तो ओवरऑल और ये चीज़ जब हमारी अथॉरिटी से बात होती है पाकिस्तान में, वी ऑल्सो मेंशन द सेम थिंग कि दुनिया भर में जो बिलियनियर्स हैं, जो मिलियनियर्स हैं, वो सेलिब्रेट किए जाते हैं. लोग अपनी बाकायदा लिस्टिंग्स लॉन्च करते हैं एवरी ईयर के वी प्रोड्यूस दैट मैनी नंबर ऑफ बिलियनियर्स इन आवर कंट्री. तो दैट समहाउ बेनिफिट्स द कंट्री Yeah. इन अ लॉन्गर रन, कि आपने इतना फ्रेंडली इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है बिजनेस के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए, कि वो इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं आगे वहाँ पे. आई थिंक इस ये रिलीजियस एस्पेक्ट को जो साथ में मिलाते हैं ना, आई थिंक उसको या तो आप बिल्कुल एसोसिएट ना करो, अगर कर रहे हो ना एक इस एंगल में रखो जहाँ पे उसको डिस्करेज नहीं करना चाहिए. लाइक पीपल से कि जी इस्लाम में तो ये, इस्लाम में तो सबसे ज़्यादा बल्कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया गया है, लाइक बिजनेस को, ट्रेडिंग को, ये सारी चीज़ों को. बट इट्स लाइक
वो ही बात आ जाती। मैं यहाँ पे मस्जिद में गया था रिसेंटली में डैलस में ना, रिचर्डसन में, इट्स अ बिग मॉस्क INT। वो बंदा ही बात कर रहा था कि इमेजिन यू गो टू द होटल फॉर 2 days, आप वहाँ पे सामान तो नहीं रखवाने लग जाओगे, बनाने नहीं लग जाओगे, दुनिया फानी है, आनी जानी है। मैंने कहा ये कितने लोगों के माइंडसेट बदल रहा है बैठा हुआ, लाइक एक मतलब क्या कहते हैं उसे, जुम्मे से पहले जो आप खुतबा दे रहा है, लेकिन खुतबे में भी कितने लोगों का माइंडसेट चेंज हो जाता है। व्हाई आर यू टॉकिंग लाइक दिस, लाइक इनफैक्ट मेरी शायद थोड़ी अनऑर्थोडॉक्स सोच है, लेकिन मैं कहता हूँ एंटरप्रेन्योर्स को ही मुल्ला बन के मस्जिद में लोगों को खुतबा देना चाहिए, और दिया दीन और दुनिया साथ लेके चलनी है। आई थिंक लाइक पाकिस्तान का मुझे बहुत बड़ा इशू लगता है कि लोग कहते हैं बस वो एक राशन पे चलना है, ये करना है, वो करना है हमने, मतलब लाइक किसी की बोली सोच नहीं है। का भी है, क्लैरिक्स के जो बैकग्राउंड है ना, अभी जो नए क्लैरिक्स हैं वो जिनका पढ़ा लिखा बैकग्राउंड है, जिन्होंने स्कूलिंग की हुई है, मदरसे की भी स्कूलिंग है उनकी, और अपनी नॉर्मल पाकिस्तान में जो कॉलेज यूनिवर्सिटी की स्कूलिंग है ना, तो उनको दोनों का डिफरेंस पता है। अगर आप सिर्फ रिलीजियस या आप सिर्फ एक क्लैरिक हैं जिसको पता नहीं है एक्सपोजर क्या है या दुनिया में क्या चल रहा है, तो आपकी एक सर्टेन माइंडसेट ही रहेगा, जिसकी वजह से हो सकता है उस रीजन के, उस एरिया के लोग इफेक्ट होंगे, लेकिन आप लॉन्गर रन में वो नहीं कर सकते। इसलिए उनको क्लैरिक्स को ज़्यादा पसंद किया जाता है, जिनको दुनिया का पता है, जिनको फेसबुक, मेटा, काफ़ी ऐसे लोग हैं मैं देखता हूँ अक्सर, जो कि सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे होते हैं, इस तरह का उनको सोशल मीडिया का ही पता आई थिंक, लेकिन उसका ना बस मुझे ये बुरी चीज़ लगती है कि इस्लाम को ना इन्होंने गुर्बत के साथ एसोसिएट किया हुआ है, एंड जब इस तरह की बात होती है तो गरीब बंदा रिलेट करता है, बट देन इस तरह मुझे पर्सनली लगता है होना नहीं चाहिए। ऐसा लगता है दुबई को और अगर एमिराटी कंट्रीज को अगर आप लिंक करो तो इस्लाम को, तो मतलब नहीं, हमारे पाकिस्तान में लेकिन लोगों को होता है ये, मैंने जेन्युइनली देखा है। मलेशिया है या इंडोनेशिया है, सब जगह। नो, बट आई वुड नॉट एग्री विद दैट। मुल्क गरीब है ना, लेकिन कैसे लोगों को कैसे एसोसिएट करोगे? वो तो शहंशाह लोग हैं, रात में 3 बजे तक चाय पीते हैं। मैं बोलता हूँ अमीर नहीं है, बट देयर राइज फ्रॉम देयर माइंडसेट। आई मीन उनकी एवरेज बंदे के ऊपर मॉर्टगेज नहीं है, या गाड़ी पे भी मॉर्टगेज नहीं है, घर पे भी नहीं है, सो व्हाट दे हैव टू अर्न इज लाइक ग्रोसरी एंड कॉल इट अ डे। तो मतलब एक अलग, मैं नहीं बोल रहा क्या सही है क्या गलत है, बट आई मीन द अपॉर्चुनिटीज लैक ओवर देयर। तो आई थिंक जब हम शार्क टैंक लेकर आए, इनफैक्ट जब मैं शार्क टैंक में आया, तो उससे ये चीज़ एक बहुत प्रमोट हुई और हाईलाइट हुई, और एक फंडिंग को एक बहुत पुश दिया गया, जैसे जो VCs होते हैं और ये सब चीज़ों को। तो हमने इस पर बहुत काम किया, और इसके बाद जो है ना बहुत ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स जो है वो आगे आए, और बहुत सीड राउंड्स चले, और अलग अलग नेटवर्किंग के अंदर भी। और आई थिंक जो आजकल जितनी कॉन्फ्रेंसेस वहाँ पे हो रही हैं, और जो लोकल इदारे हैं, मुझे एग्जैक्टली उसका नाम नहीं पता, बट बहुत सारी कमेटीज़ ऐसी हैं जो कि जो स्टार्टअप्स हैं उनको इतना सपोर्ट कर रही हैं। और आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, पाकिस्तान की जो IT इंडस्ट्री है, आई थिंक देव मेड अ फॉर्चून आउट ऑफ इट। पता नहीं कितनी मिलियंस और बिलियन, आई थिंक दे ऑलमोस्ट कॉस्ट लाइक $1 billion IT export. as well. Pakistan itself is investing $1 And billion I think Pakistan exported like $1 billion worth of services in the last year or half a year. Oh, yeah, 100%. I'm in that industry, and I know, like, I teach them कि like like go out and get international clients. I think जो missing है ना चीज़, mindset तो आप कभी खुद से चेंज होगा लोगों का ओवर द टाइम, बट अपॉर्चुनिटी जो है वो एक चीज़ है जो वहाँ पे अक्सर मिसिंग होती है। बट वही वाली बात है, जितनी कौम पढ़ी लिखी आती जा रही है, और जो क्योंकि पाकिस्तान का जो यूथ है वो उसका जो रेशियो है पॉपुलेशन के अंदर, आई थिंक दैट्स लाइक ऑलमोस्ट, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, इट्स लाइक बिटवीन 60 to 70% जो वो है वो जवान लोग हैं। तो आई थिंक जो पढ़ा लिखा तबका निकलता जा रहा है, वो कुछ ना कुछ करने का ही सोच रहे हैं। दे डोंट बिलीव इन ब्रिक एंड मोटर। हमारी तरह जहाँ हम ओल्ड स्कूल काम कर रहे हैं, रोज जाते हैं, पैसे कमा के लेकर आते हैं। They want to do like something which is unique out of the box. I mean, but I think which is working out. I mean, we don't have much time, but I was going to talk about the boring businesses that people say brick and mortar, right? Like people used to say कि like engineer बनो, doctor बनो, but now कोई अगर कहता है मैं electrician बनना है, तो उसको कहते थे तू क्या मैकेनिक की दुकान पे उस पे काम करेगा। अब in US, plumbers and electricians are earning way more than the most amount of money any other profession. वो आप डिग्री वाला बंदा नहीं बना रहे, right? Yeah. Carpenter, electrician, automobile, like mechanic जिसको हम बोलते हैं अपनी जुबान में, right? So but what Usman bhai was saying, like पाकिस्तान का जो शार्क टैंक था, I think मैं यहाँ पे था, मुझे I knew about him, but it's just an idea, right? वो शो में उसके बाद I think it opened up so much for the mindset in Pakistan for people कि अच्छा यार एक TV पे आ रहे हो तो like it's a trust thing, right?
वैसे प्लेटफॉर्म कैसे पाकिस्तान में किसी को मिलता है? अभी कोई आम आप बच्चा आके हमसे बात करेगा, हम भी शायद बात नहीं करेंगे उससे, बिकॉज हमें लग रहा है यार पता नहीं आके इधर उधर चवले चवले मार के चला जाएगा, राइट? यू नो, स्कैमर होगा. बट अब वो अगर उस प्लेटफॉर्म तक अगर आ रहा है ना, तो उसका कोई चेक एंड बैलेंस हुआ है. तो वो खाली इन्वेस्टर के लिए, वो उसके लिए नहीं जो बंदा बिजनेस करना चाह रहा है, क्योंकि काफी लोग आपको भी रीच आउट करते हैं. इवन फॉर इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम श्योर फॉर उस्मान भाई पॉइंट ऑफ व्यू भी, उनको भी होगा कि ठीक है अगर यहाँ तक ये पहुंच गए तो उसको कुछ तो चेक हुआ है पीछे. ये नहीं कि यार मेरे पास भी लोग आते हैं, यहाँ पे भी लोग हमें मिलते हैं, पाकिस्तान से मैसेज आ रहे होते हैं इंस्टाग्राम पे, लेजी एम्बिशियस, इतने पैसे दे दें हम ये बिजनेस कर लेंगे, कपड़ों की दुकान आपको बहुत पैसा बन जाएगा, बट ट्रस्ट ही नहीं है. बट आई थिंक दैट वाज अ गुड इनिशिएटिव फॉर समथिंग लाइक इन पाकिस्तान, यू नो, लाइक पूरी दुनिया में हो रहा है यार, लाइक अगर like what he's saying, if FBR like even appreciated it, then it gotta be something good about it. I think इंसान को जो है ना वो अपने साथ लॉयल होना चाहिए. अगर आप अपने साथ लॉयल हो कि यार आपने घर पे अच्छी तरीके से खाना है, पीना है, रहना है, सहना है, उसके लिए बाहर जाके आपको काम करना पड़ेगा. तो जब आप बाहर जाके काम करोगे और अपने साथ लॉयल होगे तो आप खुद ही आगे वर्कआउट करके कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगे. आप अपने साथ ही लॉयल नहीं हो, आप खाली कुछ भी BS कर रहे हो, टाइम ज़ाया कर रहे हो, तो कहाँ से सक्सेस मिलेगी? मतलब वो बहुत सिंपल बात है. बचपन में अगर सोचो, एग्जाम से पहले रात में पढ़ रहे होते थे, आखिरी दिन तक रट्टा मार रहे होते थे, तो चलो पास हो जाते थे, कुछ नंबर आ जाते थे. बट अगर कुछ भी नहीं पढ़ते और बुक बंद ही रहती तो 100% फेल होना था ना. इज दैट काइंड लॉजिक. हरकत में बरकत है, करोगे तो होगा. और वही बात है कि देयर इज नो लाइक रॉन्ग स्टेप, लाइक इवन इफ यू फेल दैट इज द राइट स्टेप टुवर्ड्स entrepreneurship, right? Like failure comes with it, yeah. Like I think failure, it's a tax you pay with it. No, but I have learned from all my failures, you know. And business हर वक्त profit नहीं बना रहा होता है. There's some business you're gonna lose money, but don't give up. That's the bottom line. So like I'm asking my last question then, if you want to continue with that. जो अभी सिचुएशन हुई पूरी आपने देखा, ये जो एक वॉर की सिचुएशन थी, हाउ डू यू सी द रोल ऑफ करंट लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान इन फैक्ट? और हमने देखा कि किस तरह JD Vance जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो पाकिस्तान गए. इस पूरी सिचुएशन को आपने कैसे एनालाइज किया, knowing the fact you are from तो मैं थोड़ा सा रिवाइंड करूंगा, आई माइट टेक अ मिनट. सो व्हेन 9/11 हैपेंड, आई वाज इन ह्यूस्टन in my elementary school, and my elementary school teacher's brother used to work in the Twin Towers. Okay. And that was the situation. I remember it was like around 12:30 noon. So that was the panic situation which we saw as kids. And then over the time, we saw how Pakistan, because it was basically Afghanistan and then Pakistan was somehow the other connected with it. Maybe it sounded similar or they were neighbors or whatsoever. So we saw that whole decade or maybe 2 decades where Pakistan was not respected, scrutinized for everything, or every time it was like not treated in a good way. But now coming back to current time, अब आज अगर देखते हैं तो पाकिस्तान ने जो अपना रोल अदा करा है, आई थिंक इन द पैलेस्टाइन वाला जो एक सेक्टर था उसके अंदर और ईरान वाले के अंदर, तो आई थिंक पाकिस्तान रियली मेड अ नेम out there for themselves, and they made a point के वो peacemaking में believe करते हैं. And I think our Prime Minister and our Field Marshal, I think they did a wonderful job, and nobody in the past has made such a great name for Pakistan out there. So I think it's amazing what they did. और एक I think milestone था जो उन्होंने achieve कर लिया. I think वो possible ही नहीं था. But they tried. बिल्कुल जितना था वो उन्होंने कोशिश की और बहुत ज़्यादा उसको रिकग्नाइज किया गया दुनिया भर से. कमिंग टू यू एज भाई, यू हैव सीन फील्ड मार्शल ट्रैवलिंग एक्टिव वॉर जोन के अंदर, जब वो ईरान के अंदर लैंड भी किए थे, एंड वो जो सारी सिचुएशन थी, that was almost like Hollywood की script. I think for a Pakistani, yeah, we are always going to be Pakistani. I think it was the most proudest moment I ever felt, like living my 17 years in America, right? Like and it happened with me. I took my son somewhere, and there was a guy, and he was like, "Are you from Iran?" I said, "No, I'm not." And I said, "No, I'm from Pakistan." He said, "Oh man, thank you guys." Like, bro, like, I mean, it's like for me, I told him, I said, "Bro, how you know?" He said, "No, I watched the news." I think उस बंदे को भी अमेरिका में जिसको पाकिस्तान की कुछ पता नहीं था ना, they started knowing कि पाकिस्तान एक country है, 100%. like, people are good, and I think Field Marshal was the most Googled man for like 3 days straight in the world. So I think, yeah, proud moment, and what he did, he landed it around, like it was like a slap on Israel and everybody's face, like, hey, come, you wanna play with us, let's and play. the country जो पाकिस्तान को isolate उस वक्त करना चाह रही थी, हमने देखा कि खुद वो isolate हुई भी थी. That was
एक बहुत छोटी कंट्री है पाकिस्तान कंपैरेटिवली, जो बड़ी डेमोक्रेसीज हैं दुनिया भर में, Yeah. तो पाकिस्तान ने एक Economy-wise बहुत भी. इंपॉर्टेंट पार्ट So one funny thing, the best thing I saw on internet was people were able to make those memes where they were putting the Pakistani Yeah, passport on I their saw forehead, and I was Yeah. like, yes, we got it. नहीं नहीं, गोरे शोरे सारे टिकटॉक पे लगे थे, सेक्रीफाइस माई ओन लाइफ फॉर पाकिस्तान, हमारा मीम नहीं चला था? exactly. पहले मैं यूं मुंह छुपाता था अपने कॉलेज में ना, बच्चे शुगर लगाते थे, अब मैं कहता हूँ हाँ क्यों नहीं भाई, No जरूर. matter what happened, like I think Pakistan has gained a lot of और respect और throughout अगर the world. और पाकिस्तान की वजह से अगर एक दिन के लिए भी सीज फायर हो गया था जी और सब रुक गया था, अगर यार, I think अगर that was a आपकी एक great- लाइफ भी बचा लिया आपने, अगर आपने उस सीज फायर की वजह से अगर कोई एक सर्टेन टाइम पीरियड तक कोई बॉम्बिंग कुछ भी कोई मरा आप- नहीं हाँ, उस टाइम पे, some तो उसका peace. क्रेडिट तो आप देंगे ना पाकिस्तान Yeah, को, नहीं, knowing the 100%. fact कि ठीक है आप किसी भी मुल्क से आपका ताल्लुक हो, आपने कुछ ना कुछ एफर्ट कुछ ना कुछ तो किया. के लिए. I You think the country is on the right direction. Yeah. That's what I feel. पिछले जो सालों में हुआ, that was a whole separate deal, but looking at it from the last couple of years, I think they're in the right directions. Lot of industries are booming. अब वर्ल्ड क्राइसिस के बाद जो डोमेस्टिक और लोकल लेवल पे जो आफ्टर इफेक्ट्स आएंगे वो दुनिया में हर जगह आ रहे हैं. यहाँ पर भी जो लोकल अमेरिकन हैं, जो लोकल सिटीजन हैं, $1 फालतू वो घर से लेकर जाते हैं एवरीडे गैस के 1 गैलन के लिए. तो अफेक्ट तो हर कोई हो रहा है, but I think overall we're getting in a better picture. Achha, one ending note on all of this is, and I want to ask you too, or your insights on it, because, I kind of predicted that post-war Pakistan is going to go much higher because, you've seen like, if you've seen like all the jo Middle East mein sari problems hui UAE ke andar, people were moving their money away from it, वगैरह. And then, I mean, I could be wrong, but people would want to secure their money to places with nuclear power and all of that, right? But apart from that, do you think like Pakistan की trajectory थोड़ी सी अच्छी जा रही है towards like all of that? After this, I actually watched a whole thing on it. Like Karachi can the 40% increase where DHA, on visit. DHA. Like even the Emaar, like people are shifting, nice. buying real estate in Pakistan over UAE. Like Dubai used to be the most safest place. Right? Yeah. अब कराची के अंदर अगर पाकिस्तान में लोग शिफ्ट कर रहे हैं बिकॉज इट्स अ हब, इट्स वेरी क्लोज, राइट? सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन फॉर पाकिस्तान, लाइक नॉट जस्ट ओनली जो फॉर पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्टमेंट जा रही थी वो थोड़ी सी अभी पॉज पे आई है, होल्ड पे आई है. पीपल आर फाइन क्योंकि पाकिस्तान से सबसे पहले पैसा आई थिंक जो बंदा लेके जाता था ना तो यूएई लेके जाता था, राइट? Yeah. सो एंड gotta be a good shift. फ्लाइट्स ले गए, सब बिजनेस चले गए वहां पे. सारे चले गए. दुनिया जहान का एयर प्लेन वहां पे खड़ा हुआ आपके पास, लाइक No. they were not only giving shelter to many other things, प्लेन्स को शेल्टर सारे आपके एमिरेट्स के जहाज खड़े हैं, कतर के खड़े हुए हैं, सारे उधर ही होते British हैं, Airways खड़ी हुई है, अबू like, धाबी. और क्या चाहिए पाकिस्तान? आई थिंक नॉट इन जस्ट वन सेक्टर के फेमस हो गया पाकिस्तान, ये इट्स गोना हेल्प अ लॉट इकोनॉमी वाइज एज वेल. रियल एस्टेट ऊपर जाएगी, बिजनेस आएंगे, लोग पैसा लेकर आएंगे, लाइक एंड द बिगेस्ट थिंग इज अ पीस मेकिंग कंट्री, राइट? सो व्हिच ओपन्स अ लॉट ऑफ टूरिज्म. Yeah. Tourism comes, money comes, right? So, And like tourism was coming from a lot of these bloggers yes, who were but अभी coming in, highlight and हो अब जाएगा, highlight अभी हो highlight जाएगा. हो जाएगा. तो जो लोग मुझे लगता है जो दुबई वगैरह जाने की कोशिश करते थे वो पाकिस्तान आएंगे, नॉर्दर्न एरियाज में आएंगे. सो आई थिंक it's a peak time and I'm sure the government of Pakistan, like, they're already doing great, so they must have a plan for it. Yeah. Usman bhai, any insights last I on think these? जो पाकिस्तान के जो लोकल लोग थे वो पाकिस्तान से बाहर दुबई स्पेशली बहुत पैसा लेके जा रहे थे, जो ग्राउंड रियलिटी है. और जो सारे एंटरप्रेन्योर थे वो बाहर लेके जा रहे थे क्योंकि वहाँ की लीगैलिटी और वो सब चीज़ें पाकिस्तान के बिजनेस स्ट्रक्चर्स को, उन लोगों को बहुत सपोर्ट करती हैं, उनकी बहुत फ्रेंडली हैं पॉलिसीज़. तो उसका आउटकम ही हो गया कि अब वहाँ कोई नहीं लेके जा रहा, ऑफ कोर्स. Yeah. और जो DHA फेज 8 है कराची का खास तौर पर, उसके बारे में मुझे पता है तो मैं कमेंट कर सकता हूँ. तो 2 महीने पहले अगर कोई प्लॉट 10 करोड़ का था तो अब वो सिंपल 15-16 करोड़ का हो गया. इसमें कोई डिस्कशन नहीं. 2 महीने में हुआ है और कुछ 3-5-6 महीने नहीं हुए. वो ऑफ कोर्स लॉट ऑफ पीपल आर मिस यूजिंग इट. वो उसका तरीका होता है, वो फाइलें घूम रही होती हैं, ऑल दैट डिलेमा इज देयर. बट ऑफ कोर्स कुछ ना कुछ इवैल्यूएशन जो है वो एंड में जब ये सब सेटल होगा तो बॉटम के अंदर वो इवैल्यूएशन कुछ ना कुछ फिर भी बढ़ के ही सामने आएगी. Absolutely. Yeah. And then, so I personally wanted to do way more because the conversation was like getting, more and more like fun. But then again, we have a timer, so we have to stop here. But it was lovely meeting you guys, Usman bhai and Ayaz bhai, and thank you Zair for putting this Musa. all together. And one last thing, if you guys really like this, don't forget to like and subscribe, and don't forget to visit their Instagrams. I'm going to put it down in the description. And if you guys want a part 2, definitely spam the comment section thoda sa, kyunki phir hum dobara ek arrange
लंच करते हैं और फिर हम कुछ बातें थी जो कवर नहीं कर पाए थे, स्पेशली लाइक इफ समबडी वांट टू स्टार्ट फ्रॉम जीरो एंड ऑल ऑफ दैट, बिकॉज ये आजकल ज़रा हॉट टॉपिक्स चल रहे हैं, इस पे बात चलेगी. बट या दैट वाज इट. एंड Uzair, do you want to give any But ending thank you remarks? so much, guys, for being part of this podcast, and thank you, Musa. And I hope this turns out to be good. और मुझे बड़ा मजा आया. Yeah, 100%. So anyways, I will see you guys in another vlog or another podcast, inshallah. बल्कि आपने पिछला वाला vlog देख लिया होगा जहाँ पे हम याज भाई की भी तरफ गए और सारा हम यहाँ पे ट्रैवल करके हैं. But more fun vlogs to come and inshallah more podcasts to come as well. I found out I love podcasting just now, it was fun. Yeah, so I will see you guys. Allah Hafiz.